Hello, once again I welcome you all to our lecture series on electrical project ideas part 3. So in this particular videos we are going to discuss some advanced control techniques that are utilized for electrical machine, especially for induction motor, or maybe you can select any other motor here also. So if you are in final year of bachelor or master class, then this particular video is helpful to you. So I'm going to also explain my PhD topic here also. So this could be also helpful to all the research scholar who are doing their PhD in this particular area. So let's start our today's video. So in the last two lectures, we have discussed basic speed control technique, or we can say that a scalar control techniques for induction or any other motors. So in this lecture also, we are going to discuss some topics and some project that you can develop or that you can design by using inverter also. But this time you require some additional equipment. So which kind of equipment that you require, that we are going to discuss in this particular video. So now let us discuss about this topic, that is advanced speed control of induction motor. पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, this induction motor could be replaced by any other variant. For example, you can select the synchronous motor, you can select the permanent magnet synchronous motor, you can select the BLDC motor. But remember, don't select DC motor for this particular advanced control techniques. So यहाँ पे आप कौन कौन से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, that is your vector control technique. So in vector control technique, you are having some options. So I will just discuss some of the topics, but if you research and you can find out some more topic also. So let us say you can perform field oriented control. So आपका यहाँ से एक टॉपिक निकल के आ जाएगा, field oriented control of induction motor. आप ले सकते हो let us say field oriented control of BLDC motor. आप ले सकते हो let us say direct torque control of induction motor. आप ले सकते हो let us say direct torque control of PMSM motor. You can also select, let us say, sensorless control. So in sensorless control, what you are doing, you are actually not measuring the speed by using encoder, but instead of this, you can measure your back EMF of your machine and you can predict or you can actually calculate the speed of machine. So in that case, you don't require a sensorless control. So these are the some topics that I have already discussed. Okay, you can also select the direct power control of your machine. Even in STDTC, or let us say in direct torque control also, you are having some variation. Let us say you can select a switching table based direct control technique. This in switching table based direct torque control technique, your switching frequency could be varying with time. So in that case, if you require, let us say, fixed switching, in that case what you are doing, you are using another algorithm, that is what we call it as a DTC SVM. So यहाँ पे मैं आपको काफी एक अच्छी सी हिंट दे रहा हूँ. हम लोगों ने लास्ट पर्टिकुलर स्लाइड में काफी पीडब्ल्यूएम टेक्निक डिस्कस की थी, राइट. सो वही थ्री फेज की पीडब्ल्यूएम टेक्निक जो आपने की हुई है, नहीं अगर ऐसे पीडब्ल्यूएम टेक्निक आप डेवलप कर रहे हो तो आप उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल के साथ कर सकते हो. सो जैसे ही आप इसे डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल के साथ करोगे, ये आपका एक और अलग प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा. ओके, सो अगर आप मान लो कि मास्टर डिग्री कर रहे हो या अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपके पास काफी स्कोप है यहाँ पर. एक बात समझो, अगर लोग थ्री फेज में आज भी पीएचडी करके पीडब्ल्यूएम पे अगर पेपर निकाल सकते हैं, ओके, बाय डूइंग जस्ट पीडब्ल्यूएम टेक्निक, वो कर सकते हैं. तो 5 फेज, 6 फेज, 7 फेज, 9 फेज, ये सारा तो पूरे वैकेंट एरिया है जहां पे बहुत ही कम काम हुआ है. सो आप उस जो एप्लीकेशंस आप थ्री फेज में कर रहे हो, आप उसे 6 फेज में एक्सटेंड करके भी काफी कुछ प्रोजेक्ट और काफी कुछ पेपर निकाल सकते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So now let us say if you want to perform advanced speed control technique, अगर आप advanced speed control technique करना चाहते हो, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत होगी. So वो एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको. So पहला जो first of all your requirement will be, you require a speed encoder because you want to ultimately perform closed loop control. So अब आप क्लोज लूप कंट्रोल करना चाहते हो, सो व्हाट यू रिक्वायर स्पीड मेजरमेंट. सो ये आपको एक एडिशनल इक्विपमेंट आपको एडिशनली आपकी मोटर में कनेक्ट करना होगा. सो इसकी कॉस्ट मुझे जहां तक याद है, दैट इज अराउंड 7K to 10K. ओके, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, दिस एनकोडर आई हैव परचेज्ड इन 2016 और 15. एनीवे, सो ये एक ऑप्शंस है.
कुछ ओके इन सम टाइम्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग, लेट अस से वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ओके, कभी कभी हम कॉस्ट इफेक्टिव भी सोच लेते हैं, सो ये हमारे पास लेट अस से, ये हालांकि इंडक्शन मोटर नहीं है, पर यही केस हमने 6 फेज में भी किया था, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। एनीवे, सो कभी हमारे पास एनकोडर ना हो तो हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सो ये आप देख रहे हो, दिस इज योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। Okay, so proximity sensor can also use. So this proximity sensor will give you a 1 pulse per revolution. Okay, so कितने पल्स पर मिनट में आ सकते हैं, उसके बेस पर आप स्पीड को काउंट कर सकते हो। जबकि ये जो है दे आर मोर एक्यूरेट। ओके, यहाँ पर आपके पास वेरिएशन है, जैसे कि 1000 ppm, so 1000 pulse per revolution. Okay, so this also definitely this will give you a more efficient way to measure the speed. So in case अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो अगर ये ऑप्शन यूज करना चाहोगे तो आपकी स्पीड सॉरी आपकी कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगी और आप यहाँ पे 700 से 1000 रुपए पर आ जाओगे। सो इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट यू कैन यूज एंड यू कैन मेजर द स्पीड। तो ये भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज टू यूटिलाइज प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो भी प्राइस दे रहा हूँ उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए, तो आपको क्या क्या चाहिए, लेट अस से वी वांट टू परफॉर्म एडवांस स्पीड कंट्रोल टेक्निक, सो वी रिक्वायर स्पीड एनकोडर और मे बी पॉसिबल वी कैन यूज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी वांट टू सेंस द वोल्टेज एंड वी वांट टू सेंस द करंट। तो यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर टू कैलकुलेट वोल्टेज एंड you require to calculate current, because we all know that what we require, we are actually transforming from ABC to DQ frame. ओके, सो वहां पे हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग क्लार्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारे जो वोल्टेज है उसे ट्रांसफॉर्म करके हम कहाँ ले जाते हैं, स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में, और वहां पे वी आर ऑल परफॉर्मिंग ऑल ऑपरेशंस एंड मे बी पॉसिबल बेस्ड ऑन अवर कंट्रोल टेक्निक वी आर अप्लाई टू इन्वर्टर्स। सो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यू वांट टू सेंस द वोल्टेज, आपको वोल्टेज सेंस करना है एंड यू रिक्वायर टू सेंस द करंट। सो यहाँ पर भी आपके पास या तो आप रेडीमेड कार्ड ले लीजिए या तो आप खुद का पूरा के पूरा वोल्टेज और करंट सेंसर बिल्डअप कीजिए। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कार्ड दिखाया हुआ है। सो दीज आर माय करंट सेंसर्स। ओके, सो दिस कैन सेंस हाउ मेनी करंट, सो दिस कैन सेंस 4 करंट। ओके, सो 3 फेज और एक न्यूट्रल के हिसाब से ये डिजाइन किया गया हुआ है। एंड एज वेल एज दिस कार्ड विल आल्सो मेजर योर वोल्टेज, और इसका जो भी आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर माइक्रो कंट्रोलर्स। कई बार हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंसर। सो ये एलईएम कंपनी का सेंसर हम लोग यूज करते हैं। ओके, दे आर फॉर मेजरिंग ऑफ वोल्टेज एंड मे बी पॉसिबल करंट सेंसर्स भी इसके अवेलेबल है। सो अब आपको एडिशनली आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर अनदर 2 एडिशनल कंपोनेंट। पहले जो मैंने आपको एक बात कर ली, यू रिक्वायर स्पीड एनकोडर, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर वोल्टेज एंड करंट सेंसर। सो ये कार्ड भी मैं आपको बता दूं, इसके कुछ वेरिएशन और कुछ वेरिएंट अवेलेबल है, पर ये कार्ड भी आपको बिलो 10K, आप अप्रोक्स कर सकते हो इन बिटवीन 7K to 10K के आसपास मिल सकता है। ठीक है, सो यू रिक्वायर एडिशनल दिस कंपोनेंट। तो आप कैलकुलेट करते रहो कि अगर आपको एडवांस कंट्रोल टेक्निक में इंटरेस्ट है तो आपको क्या क्या परचेज करना होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल अगर इन्वर्टर कार्ड है तो आप उससे भी काम कर सकते हो, पर हमारा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे कि इन माय केस वी आर हैविंग अ टोटल 6 फेज। सो कभी कभी आप चाहते हो कि आपके तीनों फेज को आप अल्टर कर दो और चेक करो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या हुआ था, जब मशीन मैन्युफैक्चर होके जब हमारे पास आई तो उसके जो फेज कनेक्शंस है वो मैन्युफैक्चर ने गलत लिख दिए थे। मतलब कि जो फेज हम मान के चल रहे थे, हमारे पास टोटल 6 फेज है, जिसको मैं इस तरह से कुछ नेम देता हूँ, लेट अस से ABC और X Y एंड Z। सो जो लेबलिंग हुआ था उसका लेबलिंग गलत हो चुका था। जहां पर ए था वहां पर एक्स हो गया, जहां पर बी था वहां पर वाई हो गया, जहां पर सी था वहां पर जेड हो गया। सो इस ऐसे केस में अगर आप उस तरह का कार्ड जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है वो यूज जब मैंने किया तो वो डायरेक्टली डेफिनेटली उसमें प्रोटेक्शन नहीं था और वो फेलियर हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर बार बार आपको आईसी चेंज करनी है। एक एक आईजीबीटी जब जब आपकी रिप्लेस करते हो अराउंड 300 to 400 की कॉस्ट आपको होती है। उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव परचेज दिस पर्टिकुलर कार्ड। तो ये सेमिक्रॉन में कार्ड है। मैं आप लोगों को बता दूं ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, ये जो मुझे जितना मैंने मेरे पीएचडी वर्क में जब जब यूज किया हुआ है वो सब चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये सेमिक्रॉन बेस्ड कार्ड है, इसकी कॉस्टिंग काफी हाई है। 30-40 एम्पियर का ये कार्ड मुझे यहाँ तक याद है, फिर से मैं आपको प्राइस 2015 की बता रहा हूँ, दैट इज अराउंड 85K है। ठीक है,
सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो है मेरे दो, ये IGBT मॉड्यूल है, 1 2, इसके पीछे एक 3 और इसके पीछे एक 4, और ये मेरे डीसी लिंक कैपेसिटर, आप डीसी लिंक कैपेसिटर की साइज देखो, ठीक है। सो काफी स्टेबल आपको कंटिन्यूस आउटपुट, ये आपका कूलिंग पर्पस है। और यहाँ पे आपके पास अरेंजमेंट है, सो जब आप कभी मल्टी लेवल इन्वर्टर में काम करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनाना चाहोगे, राइट। अगर इसका मतलब हुआ आपके पास ये दो स्विच के साथ आप दूसरी बाकी की दो स्विच जो है कनेक्ट करना चाहोगे, तो अगर इस तरह का कनेक्शन भी आप करना चाहोगे तो इस कार्ड से कर सकते हो। सो ये कार्ड हालांकि ऑप्शनल है, पर अगर आपकी कॉलेज अगर आपको फंडिंग दे रही है तो एटलीस्ट ये कार्ड खरीदना मेरे हिसाब से वर्थ है, क्योंकि इसके आने के बाद ये पर्टिकुलरली इतना मतलब आपका एक्टिव कार्ड है कि अगर मान लो आप दो फेज शॉर्ट भी कर दोगे, इफ यू आर शॉर्टिंग दिस टू फेज आल्सो, तो दे आर हैविंग इनबिल्ट प्रोटेक्शन, वो इनबिल्ट उसका पूरा अरेंजमेंट है, और आपके ये कार्ड को शॉर्ट करने के बाद भी आपके IGBT जो है वो डैमेज नहीं होती, और फेलोर रेट इसका काफी कम है। काफी कम क्या, मैंने 2016 से 2020 में मेरे जितने भी एल्गोरिदम किए, कई बार आप 50 बार कनेक्शन करते हो, या आप कई बार कितनी बार डिस्कनेक्ट करते हो और छोड़ देते हो, और कई बार आप हो सकता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो, पर जब भी आप मिस्टेक करते हो या कोई आप नया एल्गोरिदम ट्राई करते हो, आपको पता चल जाता है कि अगर आपने कुछ गलत किया भी है यहाँ पर, तो ये पूरे के पूरे जो पल्सेस है यहाँ से, जो आपके गेट पल्सेस है पूरे के पूरे यहाँ इसके पीछे कंट्रोलर है जो पूरा के पूरा इसे ब्लॉक कर देता है। सो एज अ सेफ्टी वाइज दिस इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग, यू कैन से दैट, अ वेरी रिलायबल। सो शायद मेरे हिसाब से अगर आप कुछ लंबे वक्त के लिए काम करना चाहते हो, जो लोग PhD करना चाहते हैं, उसके लिए मैं मानता हूँ वहां तक ये कार्ड खरीदना, या उनकी कॉलेज को ये कार्ड खरीदना वर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो now this is my setup of advanced control technique, so this is the setup that I have used, so you can control the speed। यहाँ पर जो अल्गोरिथम मैंने यूज किए थे मैं आपको बता दूं, अराउंड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी किया था, अराउंड 24 SVPWM अल्गोरिथम हमने इस पे इम्प्लीमेंट किए थे, और एज वेल एज वी हैव आल्सो परफॉर्म द एडवांस स्पीड कंट्रोल टेक्निक, दैट इज डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल टेक्निक। सो डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल टेक्निक में हमने जो यहाँ पे किया था दैट इज STDTC, और ये सारे एल्गोरिदम जो हमने परफॉर्म किए थे दे ऑल आर बेस्ड ऑन 6 फेज एल्गोरिदम। ओके, सो यहाँ पे हमारी मशीन जो थी दे आर 6 फेज asymmetrical machine, हालांकि we are having both the machine configuration 6 phase symmetrical and asymmetrical, but at later on we found that 6 phase asymmetrical machine is the more exploring and more exciting as far as the your PWM techniques and all the other advantage is concerned. So in some case or in some times when we publish the paper in IEEE transaction in P, after acceptance, when we receive the acceptance letter, they will also ask for some multimedia. So अब अभी की कुछ जर्नल जो है वो आपको मल्टीमीडिया भी प्रोवाइड करने के लिए कहती है। सो दिस वीडियो आई हैव रिकॉर्डेड फॉर IEEE ट्रांजैक्शन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मैं आपको यहाँ पर इसे भी डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि आप किस तरह से इसे, आपके अगर कोई प्रोजेक्ट में अगर आपको पूछता है कि यू हैव टू प्रोवाइड द मल्टीमीडिया, तो आप इसे किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग, दिस इज माय 6 फेज इंडक्शन मोटर। सो ये मेरी 6 फेज इंडक्शन मोटर है। Okay, this is my isolation transformer. So this 3 phase machine, okay, this is my 2 sensor card. So this is 1 and 2, because you all know that I'm working on 6 phase induction machine. So how many voltage or current I have to sense? Mostly I will sense at least, or minimum requirement will be 4. So out of 4 you can, if I am considering the balance condition, so if you in 3 phase case, if we sense the 2 current, we can predict the third current, okay, because we all know that IA plus IB plus IC equal to 0. So in my case also we are required to calculate at least 4, okay. So out of this 4 current we can actually predict the remaining 2 current also, because if I am assuming the balance condition, so we require a minimum 4 sensor cards. So I have used this 3 and 3 combinations here. Okay, so this is my sensor card. Okay, this is my amplification card. The requirement of this card is around 15 volt, and the pulses generated by microcontroller is around 5 volt. So though this is having a driver and everything will be inbuilt this card, but the level of output that is available in this particular pot pin is around 5 volt, and what this card is required is a 15 volt. So this is having some card and some transistor arrangement also. अगर आप पूरा 1 साल या पूरा 2 साल अगर इन्वर्टर डिजाइन करने में लग जाओगे, वोल्टेज करंट सेंसर डिजाइन करने में लग जाओगे, तो काफी आपका टाइम गुजर जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। सेकंड थिंग, ये जो 15 वोल्ट वाला कार्ड है वो भी रेडीमेड अवेलेबल्स है, सो उसके बारे में भी अगर कभी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो 5 वोल्ट विल बी अल्टीमेटली एम्पलीफाई एंड विल बिकम अ 15 वोल्ट, राइट। सो जो भी पल्सेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं दे आर एक्चुअली एम्पलीफाइड 15 वोल्ट एंड दैट विल गिवन टू दिस इन्वर्टर। मुझे कितने इन्वर्टर चाहिए? फॉर माय केस आई एम हैविंग टू सेट यूनिट, ओके, सो ड्यूअल 3 फेज इन्वर्टर। सो ये मेरा एक इन्वर्टर सेट है, ये मेरा दूसरा इन्वर्टर सेट है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट का मैंने कार्ड डिजाइन किया हुआ है, और यहाँ पर भी आई एम डिजाइनिंग अ 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट, ठीक है। एंड दिस टू जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दे बोथ आर एक्चुअली आई हैव सेंस्ड द करंट फ्रॉम दैट सेंसर कार्ड, और वो सेंसर कार्ड का इनपुट मैंने कहां पर दिया हुआ है? डीएसओ में। तो ये डीएसओ मेरा क्या मेजर कर रहा है? दे आर एक्चुअली मेजरिंग टू करंट। तो यहाँ पर एक करंट है और यहाँ पर दूसरा करंट मैं यहाँ पर सेंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द करंट सेंस बाय my sensor card and ultimately it is given to your DSO. अब ये यूनिट की बात कर ले, दिस इज माय पावर एनालाइजर। सो व्हाई वी आर यूजिंग द पावर एनालाइजर? सो पावर एनालाइजर विल यूज टू मेजर द हार्मोनिक्स, ठीक है। मैंने आपको आगे भी एक बार बताया था कि अगर आप हार्मोनिक्स को मेजर करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप इतने कॉस्टली इक्विपमेंट लो, आपके डीएसओ भी मोर देन इनफ है जो आपके हार्मोनिक्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। एनीवे आई हैव यूज्ड द पावर एनालाइजर, इसकी भी कॉस्ट काफी आई है, मुझे जहां तक याद है ये अराउंड 4 to 5 lakhs के अंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज माय फ्लूक बेस्ड पावर एनालाइजर जो हमने यहाँ पे यूज किया। कभी कभी हम 3 फेज एनालाइजर भी यूज करते हैं जो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज पावर एनालाइजर टू मेजर करंट, वोल्टेज, पावर एज वेल एज दिस विल मेजर ओके, पावर, रिएक्टिव पावर, हार्मोनिक कंपोनेंट। सो अप टू 50 हार्मोनिक, मतलब कि 50 हार्मोनिक तक ये आपको मेजर करके दे देगा। सो ये जो हार्मोनिक यहाँ पर, सॉरी, सो ये जो हार्मोनिक स्पेक्ट्रम है यहाँ पर आपको अप टू 50 हार्मोनिक दे देगा। अब जबकि मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी ही अराउंड 4.8 किलोहर्ट्ज होती है, सो अप टू 50 हार्मोनिक में कहाँ आपको हार्मोनिक देखने को मिलेगा? जो भी हार्मोनिक मेरे प्रेजेंट है वो 50 के बाद है, ठीक है। चलिए, सो ये मेरा हार्मोनिक एनालाइजर हो गया। This is two current. This is 32-bit microcontrollers. I have used a C coding over here in 32-bit microcontrollers. This is DC link voltage and current, and this is my 12 terminals of 6-phase machine. So यहाँ पे I have used a star connected isolated neutrals. Isolated neutral का मतलब हुआ ये 3 फेज मैंने शॉर्ट किए हुए हैं और यहाँ पर ये 3 मैंने फेज शॉर्ट किए, और ये मेरे फेज वाइंडिंग A B C X Y Z। सो टोटली ये हो गए मेरे 6 फेज मशीन। सो दिस इज माय सेटअप। सो ये पूरे सेटअप का वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज एडवांस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने हार्मोनिक स्पेक्ट्रा को कैप्चर करके रखा हुआ है। ओके, ये हार्मोनिक स्पेक्ट्रा कब आता है? जो लोग अगर पीडब्ल्यूएम से फैमिलियर, उसे पता हो, योर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एमएफ, 2 एमएफ, 3 एमएफ, इस तरह के आपके बैंड होंगे। इट विल डिपेंड्स ऑन व्हिच एल्गोरिथम इज एक्चुअली रनिंग राइट नाउ। और जब आपके एमएफ की वैल्यू 50 से हाई हो तो ये आपका कभी भी मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कब तक, कहां तक मेजर करता है? 50, अप टू 50 हार्मोनिक। हालांकि पावर क्वालिटी वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर ये काफी यूजफुल रहता है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मशीन केस में, कि जहां पे आपके हार्मोनिक स्पेक्ट्रम ही आपके एमएफ पर डिपेंड है। मान लो कि मेरे केस के अंदर कई बार एमएफ की वैल्यू होती थी लेटेस्ट से 120। अब एमएफ की वैल्यू 120 है, इसका मतलब मेरा हार्मोनिक जो है वो अराउंड 120 हार्मोनिक, 120 हार्मोनिक। सो वो तो इसके अंदर कभी आ ही नहीं पाएगा। सो ये चीज भी आपको अगर ध्यान रखनी है कि अगर आप एडवांस स्पीड कंट्रोल टेक्निक कर रहे हो और आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, तो ये जो अगर पावर एनालाइजर है तो वो आपको रियल वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक नहीं दे पाएगा। सो ये वैल्यू, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना। सो दिस इज अनदर सेटअप। ये मैंने शायद, yes, this advanced control technique is actually setup that I have used for a direct torque control। जो पिछला एल्गोरिथम था वो मेरा SVPWM एल्गोरिथम था, ये जो मेरा एल्गोरिथम है वो STDTC, ये स्विचिंग टेबल बेस्ड डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल एल्गोरिथम्स है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी असिमेट्रिकल मोटर है, ये भी मेरी असिमेट्रिकल मोटर है। हालांकि इसकी रेटिंग थोड़ी कम है, ये अराउंड 2 किलोवाट है, और ये 4.5 या आई थिंक 7 किलोवाट है। एनीवे, चलिए यहाँ पे बात करें तो ये जो पर्टिकुलरली ये डीसी लिंक वोल्टेज, ये इन्वर्टर्स, और ये जो मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज माय डीटीसी रिस्पॉन्स।
So what we are actually doing, we are applying some speed command. So initially आपने कोई एक speed command दिया और DTC में आप क्या चेक करते हो, आप स्पीड रिस्पांस चेक करते हो, राइट, कि कितनी स्पीड में वो आपकी रेफरेंस स्पीड को, आपकी मोटर की स्पीड अचीव कर रही है। तो यहाँ पर हमने जो स्पीड एनकोडर का जो आउटपुट था वो कनेक्ट किया हुआ है। सो ये जो स्पीड है उसे हमने डीएससी ब्लॉक से, माइक्रो कंट्रोलर के डीएससी ब्लॉक से बाहर निकाली और अल्टीमेटली यहाँ पर मेजर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर स्पीड रिस्पॉन्स और योर मशीन विल फॉलो योर कमांडेड स्पीड। ओके, सो दिस इज ऑल क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट ड्रॉप कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। So now let us discuss about the another topic. ये जो topic है that is a PWM rectifier. So whenever you are having, let us say, conventional rectifier. So in conventional rectifier, let us say your load is highly inductive. So what kind of current you can assume over here? You can assume here constant current, right? Because of I am assuming that this is highly inductive load. So in case of highly inductive load, when I am saying that my diode D1 and D2 is on, so when my diode and D1 and D2 is on, the current flowing through this particular path, that is equal to positive. So let me draw over here. So I can assume some positive current. And whenever I am assuming, let us say diode 3 and diode 4 is on. When I am saying that diode 3 and diode 4 is on, then current direction will be like this. So current will be exactly opposite to this, right? And my load current, what is current, loads current I0, I am assuming constant. So when I am saying that diode D1 and D2 is on, this load constant current will be flowing through my input side, right? So this is my input current. Let me write down IN. So I can say that this current, input side current and output side current will remain same, because in series circuit current will remain same. And when diode D3 and D4 is on, current remains same. The only thing is that the polarity is reversed. So it means that if I will draw the current, then this is my current shape. So you observe this current shape, it is containing almost all harmonics, right? So how to remove this harmonic? So that topic is known as a PWM rectifier. So this is, you can say that a waveform that captured. So this is a power factor is very poor and THD is very high. So in this particular case, you can observe here. Okay, you can observe here harmonics. Okay, so this is my input current. This is my input current and this is my input voltage. So the thing is that if you are having, let us say, diode bridge rectifier, it will allow the power. This will allow the power in only one direction. Okay, you cannot allow the power to flow from load to source. So in some cases, let us say you want to apply a regenerative braking. So when you apply or you want to apply a regenerative braking means what? Power that is available from this machine. When you apply a regenerative braking, power that is available from this machine should be fed back to your supply side, right? So आप चाहते हो कि यहाँ पर जो power available है वो सारा के सारा आपका absorb हो जाए. So in that particular case, you require, instead of diode, what you require a switch that will allow. So यहाँ पर आप क्या करोगे, ये switch की जगह पे आप IGBT module use करोगे. Okay, so here for regenerative arrangement and as well as to improve the power factor, you can use this project, that is PWM rectifier. Okay, so यहाँ पे हालांकि मैंने सिर्फ लोड लिखा हुआ है, but remember this load is ultimately your machine, right? So ये आपकी पूरी सर्किट हो गई. So this is your front end converter. So front end converter में आप क्या यूज करोगे? Again यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? 3 phase inverters. Okay, so हालांकि मैंने यहाँ पे सिंगल फेज दिखाया हुआ है, but आप यूज करोगे यहाँ पे 3 phase inverters. तो ये हो गया आपका 3 phase inverter. दिस इज अगेन लोड एंड कन्वर्टर. इसका मतलब हुआ अगर मैं 3 फेज मशीन को रन करवाना चाहूं तो मुझे कितने यूनिट चाहिए इन्वर्टर के? नाउ आई रिक्वायर 2 इन्वर्टर यूनिट. ओके, सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ये हालांकि मैंने डिजाइन नहीं किया हुआ है, ये हमारे एक फ्रेंड है दैट इज हरिशंकर, वो उन्होंने ये डिजाइन किया हुआ था. चलिए इसे समझ लेते हैं. ये पूरा के पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन किया गया हुआ है डी स्पेस के अंदर. सो यहाँ पर वी रिक्वायर 2 कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आपका फ्रंट एंड है, एक आपका लोड एंड कन्वर्टर्स है. सो यू रिक्वायर 2 कार्ड. और ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि ये एडवांस टॉपिक है, फिर भी हमने कहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? वी हैव यूज्ड अ बेसिक इन्वर्टर सर्किट. यहाँ पे हमने सेमीक्रोन का मॉड्यूल यूज नहीं किया हुआ. दिस इज योर डीसी लिंक कैपेसिटर, दिस इज योर वोल्टेज एंड करंट सेंसर कार्ड. ओके, एंड दिस इज योर मशीन, एंड दिस इज योर 3 फेज पावर एनालाइजर्स. सो दिस इज माय हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PWM rectifier. This is developed by Harishankar K, MTech student. So this is the result. So this is your normal mode result. You observe the voltage and current. So in this normal mode voltage, when voltage is positive, current is also positive. So you can say that power is positive. Positive power means power is actually flowing from source to load. And you observe here,
your voltage and current is actually out of phase. So if you calculate the power, power is the product of voltage and current. Voltage is positive, current is negative, so power is negative. Similarly here, when current is positive, voltage is negative, so power is negative. Negative power means what? It is actually flowing from your load to source. So whenever you apply a regenerative braking, your motor will come in contact, or motor will come into the quadrant that is regeneration operation, right? And your power is flowing from load to source, and this way you can actually improve the efficiency of the machine. Okay, so because of that, the regeneration is possible and your THD is also improved. So these are the advantage. So if you are studying in MTech class, you can also select this type of topic. And if you are in bachelor students, then first of all, maybe possible you have planned for your, you can say that a simulation topic, and you perform the simulation, and finally, if you success, you can go for this type of project. Okay, for B student, let us say you want to perform an advanced control technique. अगर आप मान लो कि you want to perform a switching table based direct torque control technique, अगर आप ये टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो हैव टू परफॉर्म सम स्केलर कंट्रोल टेक्निक इन पास्ट. या तो आपने कोई स्केलर कंट्रोल टेक्निक पास्ट में की हुई हो, या तो आपके गाइड भी ऑलरेडी इसी डोमेन में, आपके गाइड एमटेक या पीएचडी कर चुके हो. ऐसे केस में आप यहाँ पे ले लीजिए. पर आपके गाइड प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, आप भी पहली बार कुछ इस तरह का टॉपिक ले रहे हो और आपने डायरेक्टली ले लिया लेटेस्ट से स्विचिंग टेबल बेस्ड डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल ऑफ लेटेस्ट से 3 फेज इंडक्शन मोटर, पर आपने आज तक कभी मोटर पे काम नहीं किया हुआ है. सो अब ऐसे केस में अगर आप ये ले लोगे तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आएगी, आपको 1 साल तक तो कभी कभी आपका 1 साल तो कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आपने ले लिया हुआ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन. तो भी थोड़ा सा जब भी आप सिलेक्ट करो बी वाइज, थोड़ा सा स्लाइड आपको जो भी है स्मॉल स्टेप लो. पहले आप एक काम करो, आपका टॉपिक डिसाइड कर लो. लेटेस्ट से वी वांट टू परफॉर्म सिमुलेशन बेस्ड स्विचिंग टेबल बेस्ड डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल ऑफ टेक्निक. अब स्टार्ट करो आपका प्रोजेक्ट. जैसे जैसे आपको लग रहा है आपके 2 महीने में आपने स्विचिंग टेबल बेस्ड डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल एल्गोरिथम का सिमुलेशन कर लिया, आप 1 या 2 टेक्निक ले लीजिए, उसका कंपैरिजन भी कर लिया. अब आप सिर्फ मोड में आ गए, क्योंकि आप एग्जामिनर को बताने के लिए अब आपके पास कुछ है. अब आप एक काम कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए हार्डवेयर. ऐसा नहीं कि पहले ही दिन में आपने डिजाइन कर लिया कि नहीं हमको स्विचिंग टेबल बेस्ड डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल करना ही है, और आपने हार्डवेयर स्टार्ट कर दिया और जनवरी फरवरी मार्च आ गया और आपका कुछ नहीं हुआ और आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए. तो इस तरह से मत कीजिए, ठीक है. आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए. अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो, अगर आप एमटेक स्टूडेंट हो, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा 1 साल आपको इसी के लिए है, तो आप डेफिनेटली पहले से सिलेक्ट कर लो और आपको एक अच्छा सा नया सा थोड़ा नया सा एल्गोरिथम ले लीजिए. आप कन्वेंशनल, अगर बैचलर स्टूडेंट्स है, आप किसी का ऑलरेडी किया हुआ वर्क अगर आप खुद बना रहे हो तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है. पर अगर आप एमटेक स्टूडेंट हो तो कुछ थोड़ा सा आप नया अपना इनपुट इसमें देना ही चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द सोलर एप्लीकेशन. सो यहाँ पे सोलर एप्लीकेशन, दिस इज योर सिंगल स्टेज कन्वर्जन. सो ये सोलर का मैं कहाँ पे कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, मैं आप लोग को याद दिला दूं. हम लोग अभी भी मशीन बेस्ड प्रोजेक्ट में है. ओके, सो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअली इंक्लूड अ मशीन टाइप ऑफ इन्वर्टर. ओके, मशीन टाइप ऑफ एप्लीकेशन. सो सोलर की एप्लीकेशन हम कहाँ लेने जाएंगे, तो ये जो ग्रिड है, एक्चुअली ये ग्रिड नहीं, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो योर मोटर. Okay, so यहाँ पे आपके पास PVR है. You are having, let us say PV will generate some DC voltage. That DC will convert it to inverters, and this inverter will feed that AC voltage to induction motor. ये second, yeah, you can say that a 2-stage conversion है. So you are having PVR, you are having a DC to DC converter. ये generally कौन सा converter use होता है, जो लोगों ने काम किया पता ही होगा. This is your boost converters, and then you are having inverters, and this is grid. This is also, you can say that, a good topic for your bachelors. अगर आप बैचलर कर रहे हो तो मैं आपको सिमुलेशन के लिए सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली आप सिमुलेशन करो, ठीक है. 5 या 6 महीने में आप सिमुलेशन करो. उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और अगर आपके कॉलेज में सारी हार्डवेयर फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आप शिफ्ट हो जाओ. अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हो तो आपको ये करना ही चाहिए कि आप सिमुलेशन और हार्डवेयर दोनों को इंक्लूड करिए. तो यहाँ पे आप पहले एक सिस्टम को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, उसके बाद बाकी के सिस्टम को हम थोड़ा फास्ट देखेंगे. तो ये रेफरेंस पेपर जो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, आप इसको भी रिफर कर सकते हो. भीम सिंह सर जो कि IIT दिल्ली से, उन्होंने इस पे काफी काम किया हुआ है. चलिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सो ये कौन सी एप्लीकेशन है, दिस इज योर वाटर पंपिंग एप्लीकेशन, दिस इज योर सोलर एरे. ये हो गया आपका बूस्ट कन्वर्टर.
सो जो लोग बूस्ट कन्वर्टर पे काम करना चाहते हो, मैं आपको ये भी बता दूं, यू हैव टू डिजाइन इंडक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये इंडक्टर डिजाइनिंग भी आपका काफी वक्त ले लेगी। सो पहले इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं आपको किस तरह से काम करना चाहिए अगर आप सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में काम करना चाहते हो। पहले आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप सिमुलेशन में सिर्फ और सिर्फ सोलर का मॉडलिंग कीजिए। ठीक है, सो ये सोलर का आपका मॉडलिंग हो जाएगा। ये कुछ लड़के, मान लो आप ग्रुप में हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दो लड़के एक काम कर सकते हैं, लेटेस्ट से सोलर मॉडलिंग पे काम करें, एक या दो लड़के आपके इंडक्टर डिजाइन पे काम करें अगर आपकी कॉलेज में बूस्ट कन्वर्टर नहीं है तो। ठीक है, और दूसरी बात, जो सिमुलेशन में काम कर रहे हैं वो बूस्ट कन्वर्टर के साथ कोई मोटर वोटर ना लगा के पहले इनिशियल स्टेज में क्या करें, यहाँ पर आप कोई भी लोड कनेक्ट करें। सो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना है, सोलर का मॉड्यूलेशन करना है, उसके बाद बूस्ट कन्वर्टर का सिमुलेशन करना है, सब कुछ सिमुलेशन। ठीक है, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो बूस्ट कन्वर्टर करने के बाद आप क्या करो, आप इन्वर्टर और इंडक्शन मोटर, सो ये कॉम्बिनेशन ले लो। तो वहां पे आप क्या एज्यूम कर लो कि लेटेस्ट से आपके पास डीसी अवेलेबल है, आप यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट करते हो और यहाँ पे इंडक्शन मोटर कनेक्ट करते हो। तो ये हो गया आपका 3 स्टेज वर्क। आपको पहले जो सेमेस्टर है उसमें आप सोलर का मैथमेटिकल मॉडलिंग, बूस्ट कन्वर्टर का मैथमेटिकल मॉडलिंग और सिमुलेशन, और इंडक्शन मोटर का इन्वर्टर। ठीक है, सो यहाँ से आपकी स्पीड कंट्रोल का आपका एप्लीकेशन, सो ये आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एक सेमेस्टर निकल गया। अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपको सब कुछ आइडिया आ चुका है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास सोलर एरे है, अगर आपके पास बूस्ट कन्वर्टर है, अगर आपके पास लेटेस्ट से इन्वर्टर्स है, तो अब आप इस स्टेज पर काम कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये अल्टीमेटली जितना भी रखा हुआ है ये सब कुछ आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका कंट्रोलर पार्ट हो जाएगा, ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट से आपकी इंडक्शन मोटर की रेटेड है 1 किलोवाट। ठीक है, ये इंडक्शन मोटर की रेटिंग है लेटेस्ट से 1 किलोवाट, आपने सोलर पैनल भी लेटेस्ट से लगा के रखी हुई है 1 किलोवाट। अब मान लो कि आपका सोलर रेडिएशन कम हो चुका है, तो ये 1 किलोवाट की जगह पे मान लो ये हो चुका है हाफ किलोवाट। अब ये हाफ किलोवाट हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आप 1 किलोवाट ही रखोगे तो क्या होगा, ये हाफ किलोवाट अगर जनरेशन है, दिस इज हाफ किलोवाट जनरेशन, दिस इज 1 किलोवाट जो आपकी मोटर कंज्यूम कर रही है। सो ये बाकी का पावर, ये पहले पावर कहां से मांगेगा, ये कैपेसिटर से मांगेगा, राइट। जो भी पावर सोलर जो भी पावर जनरेट कर रहा है बाय यूजिंग एमपीपीटी एल्गोरिथम, आप इसका मैक्सिमम पावर कहां एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप कैपेसिटर में एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। और कैपेसिटर आपका जो भी है वो आपका सारा के सारा पावर कहां डंप कर रहा है, आपका मोटर के अंदर कर रहा है बाय यूजिंग दिस इन्वर्टर मॉड्यूल। अब ये 1 किलोवाट है और ये आपका जनरेशन हाफ किलोवाट है, तो क्या होगा, योर डीसी लिंक वोल्टेज भी गोइंग टू बी रिड्यूस, राइट। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि सोलर पैनल आपने 2 किलोवाट लगा के रखी, या मान लीजिए सोलर पैनल 1 किलोवाट ही है। अब आपका रेडिएशन अच्छा खासा 1 किलोवाट हो रहा है, पर आपकी मोटर जो है वो 0.5 किलोवाट ही जनरेट कर रही है। चलिए, आपकी मोटर 0.5 किलोवाट ही, लोडिंग जो आपकी मोटर पे है वो 0.5 किलोवाट है, सोलर जो जनरेट कर रहा है वो 1 किलोवाट। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपका डीसी लिंक वोल्टेज बढ़ना चालू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 किलोवाट जो पावर है वो सोलर जो है पूरा के पूरा कहां डंप कर रहा है, आपके कैपेसिटर में, राइट। बट कैपेसिटर के पास जो पावर आ रहा है उसमें से आप कितना पावर ले रहे हो, आप ऑलमोस्ट हाफ पावर ही ले रहे हो, बाकी का पावर कैपेसिटर में ही रहेगा। सो कैपेसिटर वोल्टेज जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। सो एक केस में आपका कैपेसिटर का वोल्टेज कम होना चालू हो जाएगा, एक केस में आपका कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ना चालू हो जाएगा, और ये दोनों ही चीजें आपको अवॉइड करनी है, राइट। सो आपको क्या करना है वो देखिए, ये जो पूरा नीचे का एल्गोरिथम है, आप क्या कर रहे हो, आप सोलर का वोल्टेज मेजर कर रहे हो, सोलर का करंट मेजर कर रहे हो, आप एमपीपीटी एल्गोरिथम रन कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, आप डीसी लिंक वोल्टेज को भी यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हो, लेटेस्ट से 650। सो टू रन द मोटर यू अप्लाई लेटेस्ट से 650 वोल्ट डीसी लिंक, दैट इज योर रेफरेंस। मतलब कि आप एज्यूम कर लो कि अब मेरा 650 वोल्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, अब पावर किस पे डिपेंड करता है, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर, राइट। पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। एक सिंपल सी चीज है, अगर मान लो कि मेरी मोटर 1500 आरपीएम से रोटेट हो रही है, तो अगर मान लो कि ये जनरेट कर रही है 1 किलोवाट, so if it is rotate with, let us say, half of the speed, so if it is rotate with half of the speed, then power will be 0.5 kilowatt. तो मुझे क्या करना है, if let us say this will goes to, let us say, 0.5 kilowatt, तो ये जो मेरी अगर 0.5 किलोवाट पर पहुंच गई, if this is let us say reach to 0.5 किलोवाट, so इसकी जो स्पीड है, इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल वे से, अगर सोलर का रेडिएशन हाफ हो गया तो ये मोटर का जो स्पीड है इट ऑल्सो बी रिड्यूस टू हाफ किलो, और हाफ यू कैन से दैट हाफ ऑफ इट्स रेटिंग, राइट। तो यहाँ पर हम क्या सेंस करते हैं, देखो, वी आर यूजिंग एमपीपीटी एल्गोरिथम,
फॉर वीपीवी एंड आईपीवी। तो यहाँ पे आपके पास पावर की इंफॉर्मेशन है, ये आपकी फीड फॉरवर्ड टर्म है, और यहाँ पे आप क्या देते हैं, यू आर एक्चुअली अप्लाई अ फ्रीक्वेंसी इनपुट, राइट। सो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो ऑलमोस्ट वोल्टेज 0, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। हालांकि आप वोल्टेज कुछ लेवल के बाद नहीं बढ़ा पाओगे, राइट, आप रेटेड वोल्टेज से कभी ज्यादा नहीं जाओगे, तो यहाँ से आप इसे, ये स्ट्रेट लाइन आपकी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। दिस इज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जो लोग इस टर्म से फैमिलियर है, लेटेस्ट से अगर आपको 1 किलोवाट पावर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके पास 1 किलोवाट की इंफॉर्मेशन है कि सोलर इज जनरेटेड 1 किलोवाट, तो आप फ्रीक्वेंसी कितनी रख दोगे, दैट इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना रख दोगे आप, आपका मैक्सिमम। लेटेस्ट से आप साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम टेक्निक करते हैं, सो लेटेस्ट से 1 पर यूनिट आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब अगर आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि आपका सोलर जो है रेडिएशन कम हो चुका है, सो अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या फीड करना चाहोगे, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी फीड करना चाहोगे, दैट इज 25 हर्ट्ज। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप कितना कर दोगे, अगर ये 1 था तो आप कितना कर दोगे, दैट इज 0.5। सो अब जो आपकी मोटर जो यहाँ से पावर कंज्यूम करेगी वो कितना होगा, हाफ। और आपका ये डीसी लिंक वोल्टेज भी तो आप यहाँ पे सेंस कर रहे हो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे कि पीआई एल्गोरिथम भी अंदर है, पर वो सब चीजें आपको धीरे धीरे करने पे आ जाएगी। सो यहाँ पे ये मैंने पूरा एप्लीकेशन आपको थोड़ी सी ब्रीफ में समझा दी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लो, तो आपको काफी आइडिया आ जाएगा। कुछ और पेपर भी है, जैसे कि आप इसे देख लीजिए, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। ये पता है मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको ये भी आइडिया आ जाए कि किस तरह से आपको जाना चाहिए। देखिए ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है, यहाँ पे यूज हुआ इंडक्शन मोटर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपकी यूज हुई है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, राइट, एंड ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स है। दिस इज योर बूस्ट कन्वर्टर, दिस इज योर वीएसआई। सो अगर आप पीएचडी करते हो ना, तो आपको कुछ इस तरह से स्टेप करना है। पहले कुछ सिंपल सा एल्गोरिथम लो, उसे फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करो। देखो यहाँ पर आप देखोगे, दिस इज यूज अ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, सारा यूनिट वही है, और यहाँ पर एल्गोरिथम में चेंजेस है, ठीक है। आपके प्रोग्रामिंग में चेंजेस है। यहाँ पे एसपीडब्ल्यूएम की जगह पर क्या यूज हुआ है, हिस्टेरेसिस कंट्रोलर। सो दिस इज पीएमएसएम बेस्ड सिस्टम। अब आप आगे देखिए, अब ये कौन सी मोटर यूज हुई है, बीएलडीसी मोटर यूज हुई है। और यहाँ पे क्या है आपके साथ 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 में सिंगल फेज ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स है। तो अगर आप बीटेक हो तो ये सारी टॉपिक और एनालिसिस मत लेना, ये फॉर पीएचडी टॉपिक के लिए आप कर सकते हो। अगर आप एमटेक हो तो 1 या 2, अगर आप सिर्फ सिमुलेशन करना चाहते हो और एमटेक, तो 1, 2 या 3 ले सकते हो। कुछ रिसर्च रिसेंट पेपर भी है, मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये सारे एडवांस और अभी अभी के पेपर्स है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हुए। चलिए आगे चलते हैं, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एप्लीकेशन। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, सर वी वांट टू डिजाइन ईवी। सो पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट नहीं बना सकते। एक बात समझ लीजिए, आपको छोटी छोटी एप्लीकेशन लेनी है। आप ऐसा सोच के स्टार्ट करोगे कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी बनानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको वहां पर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका ऑनबोर्ड चार्जिंग है, ये आपका आप यहाँ पे क्या करते हो, यू आर हैविंग एसी, यहाँ पे आप एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हो, ये आपकी बैटरी हो गई। और ये बैटरी, ये चार्जर आपका फिर निकल जाएगा, राइट, ये आपका चार्जर आप बाद में डिस्कनेक्ट कर दो। अब जब आप मोटर रनिंग कंडीशन है, दिस इज योर बैटरी, दिस इज योर डीसी टू एसी, और यहाँ पे आप आपकी मोटर रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्जर जो है वो इनबिल्ट इंटीग्रेटेड होता है, आपको सिर्फ ग्रिड की जरूरत है। तो ये आपका एसी ग्रिड हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट ट्रेंड जो अभी चल रहा है वो ये है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ इंटीग्रेशन। आप देखिए, यही एसी जो है वो आपकी मोटर से कनेक्ट होके एसी टू डीसी और बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। दिस इज ईवी चार्जिंग एप्लीकेशंस। ओके, मल्टी फेज इंडक्शन मोटर की मैंने आपको बात की थी। मल्टी फेज इंडक्शन मोटर इज वेरी पॉपुलर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी। ये ईवी में काफी पॉपुलर है, एयरस्पेस में भी काफी पॉपुलर है, ठीक है। लिफ्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में भी ये काफी हाई पावर में ये जो यूनिट है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है काफी पॉपुलर है। सो चलिए ईवी की एक बात करूं, अगर एक एप्लीकेशन हम ले ले तो ये देखिए, ये जो पूरी सर्किट है ये हमारा जो है इंटीग्रेटेड 6 फेज ईवी चार्जिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसे समझना काफी जरूरी है। ये मेरे पास 6 फेज मशीन्स है, ठीक है। 6, अगर आप मान लीजिए अगर आप 3 फेज ग्रिड से इसे चार्ज करना चाहते हो, 6 फेज मशीन की एक अलग कैटेगरी, एक अलग आप कह सकते हो कि 3 फेज के अंदर कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 3 फेज पे अगर आप 3 फेज वोल्टेज देते हो विद जीरो सीक्वेंस,
जीरो सीक्वेंस का मतलब हुआ आपकी सारे वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम टाइम पे आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और माइनस और जीरो होने चाहिए। अगर ऐसे हुआ तो ही आप उसे यूज करोगे, वरना वो बाकी के सारे कैटेगरी में क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इन सिक्स फेज केस ऐसा नहीं है। सिक्स फेज केस में आपके पास काफी कॉन्फ़िगरेशंस है, जहां पे आपके पास काफी कनेक्शंस है कि जो आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते। थ्री फेज में अगर आप एबीसी कनेक्ट करते हो तो पॉजिटिव रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, अगर आप एसी भी जनरेट करते हो तो नेगेटिव रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट। और अगर आप तीसरा सीक्वेंस कौन सा है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, और तीसरा सीक्वेंस है जीरो सीक्वेंस, जो एक ही पॉसिबल है जिससे आप पूरा चार्जिंग प्रोसेस कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, जीरो सीक्वेंस इंजेक्ट करना है। सो जीरो सीक्वेंस के अंदर भी फिर एक पॉसिबल ये रहता है, आप वापस एक इंडक्टर लो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मशीन के इनबिल्ट इंडक्टर का भी यूज कर रहे हो, पहला एडवांटेज। और दूसरा, अब इस तरह से आपके हार्मोनिक या इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो। क्यों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो, क्योंकि आप तो चार्ज करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, ये मोटर को चलाना नहीं चाहते हो। अभी अभी आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू चार्ज ओनली। सो आप कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करते हो जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट ना हो और साथ साथ में आपकी चार्जिंग एप्लीकेशन भी हो जाए। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे आप टॉपिक ले सकते हो अगर आप बैचलर में हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा के पूरा सर हमें पूरी ईवी बनानी है, तो आपको कुछ ना कुछ पार्ट के ऊपर ही फोकस करना है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है। ऐसे ही नहीं कि मान लो ईवी तो आप क्या है, आपके पास थ्री फेज मोटर भी, आप डीटीसी जो कर रहे हो, आप एफओसी जो कर रहे हो, आप जो एसवीएम एफओसी एसवीएम कर रहे हो या डीटीसी एसवीएम कर रहे हो, वही सारा एल्गोरिथम तो अल्टीमेटली ईवी में जा रहा है। आपके पास कोई फिक्स थोड़ी है, कोई बनाने वक्त ये थोड़ी सोचेगा कि मुझे यही मोटर के साथ यही एल्गोरिथम बनाना है। सो फिर बाद में ऐसा भी हो जाएगा, आप लोग पूरी डिजाइन कर लोगे और बोलोगे इसमें नया क्या है। ठीक है, उससे तो बेहतर है कि आप उसके कोई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और लेटेस्ट क्या चलता है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। जो लोग मास्टर कर रहे हैं उसके लिए एक मैं यहाँ पर थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूंगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द एरिया कि भाई मुझे किस एरिया में काम करना है। मान लो आपने काम करना सोच लिया है कि आपको मशीन में काम करना है, ठीक है, आपने मशीन में भी डिसाइड कर लिया कि मुझे पीडब्ल्यूएम कंट्रोल में काम करना है। चलिए, ये एक एप्लीकेशन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। अब आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि आपको मशीन में काम करना है, आपको पीडब्ल्यूएम में काम कंट्रोल में काम करना है। अब सबसे बेस्ट वे क्या करो, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाओ, आप आईआईटी की वेबसाइट पर जाओ, आप एनआईटी की वेबसाइट पर जाओ और आप वहां पर शॉर्टलिस्ट करो कौन कौन फैकल्टीज है जो इस एरिया में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको पूरा एक शॉर्ट लिस्ट करो, एक पेपर पे लिख लो कि कितने फैकल्टीज अभी मशीन और पीडब्ल्यूएम कंट्रोल पे काम कर सकते हैं। आप फॉरेन ऑथर को भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली उनकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे जाओ। ठीक है, उनकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल में जाओ। ठीक है, अब उनकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे आप जाओगे और वहां पर आप सर्च करोगे तो उनके सारे पेपर जो है आपको वहां पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कीजिए और मेनली टाइम बेस्ड डाउनलोड कीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए, लेटेस्ट से आपने ईवी डिसाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आपने एमिल लेवी सर डिसाइड कर लिया है, मैं खुद मेरे शायद 50 से 60 पेपर मैंने ये सर के डाउनलोड किए हुए और मैंने इसे रिफर किए हुए। एनीवे, आपको क्या करना है, लेटेस्ट से 2010 से आपने डिसाइड किया हुआ कि लेवी सर का फर्स्ट पेपर ईवी चार्जिंग पे 2010 में आ गया। अब आप उस पेपर को 2010 से 2020 तक उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है, कितना इंप्रूवमेंट किया है वो चेक कीजिए। बाकी एक फैकल्टी का जब कंप्लीट कर जाओ, आप दूसरे फैकल्टी पे पास जाओ, तीसरे पे जाओ। दूसरी बात, जब भी उनकी गूगल स्कॉलर पे जाओगे साथ साथ में उनके कोऑथर के नाम आएंगे, अब उनकी भी कोऑथर की प्रोफाइल पे जाओ और इस तरह से पूरा एक आप आपका सर्वे पेपर स्टार्ट करो कि आपको पता चले कि किसने क्या क्या काम वहां पे किया हुआ है। हो सके तो आप सर्वे पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप या तो सर्वे पेपर डाउनलोड करके भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एक फ्लो पता चलेगा कि लोग किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और उन लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया हुआ है और कौन से एरिया वैकेंट है वो आपको वहां पर पता चल जाएंगे। और फिर उस वैकेंट एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले आप ये सोचिए, मैं हमेशा हर एल्गोरिथम को जब बनाता हूँ मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ अपने आप से कि आज तक किसी लोगों ने ये एल्गोरिथम क्यों नहीं किया। अगर मैं फुल सेटिस्फाइड हो सकता हूँ कि नहीं ये आइडिया वर्थ है, उसके बाद ही करता हूँ। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। So this is all about EV charging applications. This is another paper and this is all about it. Thank you for watching this video. We will meet you again in our next video. Thank you.